Of course, there is even now same job. There are only two options for transgender community. I started doing sex work. In that money, I started studying myself with hidden identity. Uh, and lived in society with hidden identity and completed my basic computer to advanced diploma in multimedia. And I started trying for a job. I never found a job, and I'm talking about nearly 20 years back. And so there was no other option, and then I finally got one job, freelancing job, with my colleague, computer class, when I was studying in Bangalore. So one fine day he came to know that I'm a trans. Even he stopped giving me a job. So what to do? Then I approached media, ex minister of Karnataka. He had a channel, so they recorded my whole story. They published also, but I requested for help. No help has given to me from their side. Then I joined Sangama, as you, Anupama, mentioned. I worked there. It was always there in my mind that I want to work, because of computer knowledge. I was always dreaming about IT job. Those days it was not easy. And now NGOs and a lot of people are coming and they're supporting. But those days, nothing. You have to struggle yourself. Luckily, I was accepted by family. And even when I was doing sex work, I used to support my family. Even after my computer class also, same money I used for my education and my family support. And in between I left this, so I thought, let me add this. And after Sangama, then I came to know about ThoughtWorks through Solidarity Foundation, Shubha Chako. So those days, fund was drying out for NGOs. So they told there is an opening at ThoughtWorks. Then later on, rest of the details will share. This little bit of introduction, how briefly because we have time limit, and again, no power. I may get disconnected. I'm not sure. That's the reason. Nice. Yes. We'll keep fingers crossed, and I'm sure Yes. you'll remain through the webinar. Naina, thank you so much for sharing that story. I think your life story, and what's really coming out is the fact that being in a small town, you didn't have a role model. You probably didn't even understand what was really happening, though you knew all the time कि you are not in the right body. And काफी वहीं से family से और society से discrimination, and then that whole journey of getting yourself educated. So I think, and reaching ThoughtWorks. So it's really a lot of, I think, inner resolve, which has really brought you to this level. Thanks for sharing that. उर्मी, अगला सवाल आपके लिए है. आप हमेशा सोशल सेक्टर में आपने काम किया है, तो ये कैसे हुआ आपके साथ? आपकी क्या जर्नी रही है? मैं बचपन से ही स्कूल में ठीक से एजुकेशन नहीं हुआ, बुलिंग वगैरह होने की वजह से, हैरेसमेंट होने की वजह से, कहीं पर भी ठीक से एजुकेशन नहीं होने की वजह से इतना सारा मुझे क्वालिफिकेशन नहीं है. सो शुरू में कहीं दूसरे अलग अलग से जॉब किए, कुरियर बॉयज का जॉब किया, फिर कहीं पर एक LIC एजेंट का जॉब किया. LIC एजेंट का जॉब करते टाइम पे ही मेरी मुलाकात एक कम्युनिटी के बंदे से हुई, जिनका नाम है संतोष करम्बे. हम जिनको कम्युनिटी में अम्बा के नाम से जानते हैं. वो मेरे फर्स्ट फ्रेंड है कम्युनिटी में. उनके थ्रू फिर मुझे हमसफर ट्रस्ट का पता चला, और फिर हम हमसफर ट्रस्ट में आने जाने लगे. तभी फ्राइडे वर्कशॉप्स होते थे. ओल्ड पुरानी BMC बिल्डिंग थी तभी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी तभी. और फिर वहीं पर कुछ जॉब वैकेंसीज आए. तो फर्स्ट मेरा जॉब था FHI के प्रोजेक्ट में एज अ आउटरीच वर्कर. सो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा. मैंने ऐसे ही इंटरव्यू दे दिया था, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज थी. मुझे लगा नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा, बिकॉज मेरा इतना एजुकेशन वगैरह नहीं था. तो उस वजह से भी कोई मुझे आइडिया नहीं थी कि मेरा जॉब लगेगा या नहीं लगेगा. और
तभी फिर कुछ 50 लोगों ने तकरीबन इंटरव्यूज दिए थे। 50 में से कुछ 25 से 30 लोग सिलेक्ट हुए थे और 30 लोगों के सिलेक्शन में कुछ 12 लोगों का फाइनल लिस्ट हुआ था, उसमें वो लिस्ट में मेरा नाम था। सो आई एम वेरी सरप्राइज। काम पे लगने के बाद ही मुझे कई सारी चीजें पता चली। जब हम सफर ट्रस्ट ज्वाइन किया उसके बाद कई सारी चीजें मुझे पता चली, बिकॉज तब तक मुझे भी पता नहीं था कि हिजड़ा क्या होता है, हिजड़ा कल्चर क्या होता है। क्योंकि लोग आप फेमिनिन बॉय हो या ऐसे हो तो फिर आपको लोग बचपन से उसी नाम से चिढ़ाते हैं। आप छक्का हो, आप गुड़ हो, आप मामू हो ना, लाइक दैट, उसी नामों से आपको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आपके सही नाम से, आपके असली नाम से आपको कोई भी आवाज नहीं देता है। सो ये काम शुरू किया। काम शुरू करते करते जब आउटरीच वर्कर का काम लगा तब कई सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ली मैंने। एच आई वी एड्स की ट्रेनिंग, एच आई वी एस टी आई की ट्रेनिंग, हेल्थ हाइजीन की ट्रेनिंग्स, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग्स मैंने लिए। इसके थ्रू मुझे कई सारी इंफॉर्मेशन मिली और मेरा उस तरीके से मेरा ग्रोथ भी होते गया। वहीं पर मेरी मुलाकात अभिनव मॉम से भी हुई थी। अभिनव मॉम वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती थी, उनके अंडर भी मैंने काम किया। उनके हाथ के नीचे भी मैंने काम किया एज आउटरीच वर्कर करके। बट ऐसे काम करते करते आगे मैं चली गई। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर वहां पर जब मैंने काम करते वक्त 4 हिजड़े वहां पर थे जो काम करते थे। मनीषा थी, आरती थी, सुकन्या थी, और एक मानसा करके थी। जब मैंने उन लोगों को देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, हिजड़ा मतलब क्या है। जब मैंने उनसे बात किया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, तब मुझे पता चला कि हिजड़ा शब्द का मतलब क्या है और हिजड़ा क्या है। तब सारी चीजें मेरी ये सॉर्ट आउट हुई और तब मुझे पता चला कि लोग इस तरीके से क्यों बात करते हैं, इस तरीके से क्यों बोलते हैं। कई सारे उतार चढ़ाव भी आए काम करते टाइम पे, क्योंकि कई सारा चीजें नहीं मालूम थी। मैंने सिर्फ 9th तक पढ़ाई की है। 10th में 2 बार मैं फेल हो गई। कोशिश की मैंने एग्जाम देने की, बट नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा हरेसमेंट बुलिंग जो स्कूल के टाइम पे हुआ था वो काफी दिमाग में था, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाई। बट उसी दरम्यान मैंने टाइपिंग कोर्स कर रखा था, तो उसका थोड़ा मुझे फायदा हुआ। तो ऑफिस में जो भी मेरे सीनियर्स थे, जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड लोग थे, उनके अंडर मैंने काम करते करते बहुत सारी चीजें सीखी। क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग आता था तो कंप्यूटर में काम करना इजी हो गया मेरे लिए। सो पीरियड में 12 to 8 ऑफिस टाइमिंग होता था, पर फिर भी मैं 1-2 घंटा ज्यादा रुक कर, जो भी सीनियर्स रुकते थे, फिर उनके साथ बैठ के मैं कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम करना, मतलब एक्सेल एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना, ये सब चीजें मैंने सीखी। फिर लोगों से कैसे बात करते हैं। एज अ टीजी पॉइंट पर्सन मैंने कई सारे लोगों के साथ बात किया, मेरे कलीग्स के साथ। तो उस टाइम पे मीडिया से किस तरीके से बात करनी है। हमारे रिसर्च की हेड है अल्पना मैम, उनसे भी कई सारे गाइडेंस मिले कि मीडिया के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो वहाँ पे आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक पॉइंट पर्सन होते हो और आप एक कम्युनिटी स्पीकर होते हो या लीडर होते हो, तब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप ऐसी कोई चीज ना बोले जिससे कम्युनिटी को हार्म हो और कम्युनिटी का कहीं पर भी रिस्पेक्ट डाउन हो। तो इसे काम करते करते मैं आगे बढ़ी। कब कब 20 साल हुए पता भी नहीं चला। कभी सोचा नहीं था कि मैं सोशल वर्क में इतना सारा काम करूंगी। लोग मुझे एक्टिविस्ट की नजर से जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, मेरा नाम होगा। मैंने कभी ये सपने में नहीं सोचा था। बचपन के सपने बहुत अलग थे। और आज का क्या थे? आज की हकीकत बहुत अलग है। बचपन में मुझे बहुत जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत मेरा ये था कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे वो बहुत डेडिकेटेड काम लगता था, बट होप सो वो मैं नहीं कर पाई। बट जो कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत खुश थैंक यू उर्मी। और आप जो कर रहे हैं, जो टीजी पॉइंट बन के, आई थिंक वो कोई लॉयर से कम तो नहीं है। और मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है नालसा जजमेंट के टाइम, ट्रांस बिल के इश्यूज को लेके, और अभी जो लॉकडाउन में जो पूरा सपोर्ट ट्वीट फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आपका भी तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। या सो कई सारी रैलीज हुई है उसमें। एक आध रैली में हम एक दिन के लिए हम जेल भी जा चुके हैं,
जेल के अंदर भी जा चुके हैं। HIV के लिए हमने फाइट किया था, तभी हमने ब्लैक रैली करी थी, क्योंकि दवाइयाँ बंद करने का निर्णय था इंडिया में। तभी हमने काफी सारा फाइट किया था, हमने छोड़ा नहीं था उसको, क्योंकि हम उस कंपनी के बाहर ही, गेट के बाहर ही बैठे हुए थे। जब तक उसने हमको अंदर लिया नहीं, हमने वहां से हिले नहीं हम लोग। तो कई सारी फाइट्स किए हैं, बट आई एम प्राउड, मुझे अच्छा लगता है। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू मी। एंड क्या मुझे पता, आपसे आपकी आप जो शेयर करे थे उससे मुझे यही लगा कि सबसे ज्यादा ये बात कि आपके अंदर वो इच्छा है कि सीखे, कि मैं यहाँ पे ही नहीं रुकूं, मैं और सीखती ही रहूं। जैसे आप हम सफर में भी जब ज्वाइन किया, आप एक्स्ट्रा आवर्स बिताते रहे, वो आपकी जिज्ञासा जो है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आप जहाँ पे हैं अभी उसके कारण ही दिख रहा है। सो दैट इंटरेस्ट जो हर किसी में है कि यू नो टू ग्रो फर्दर, that was there, and I think you had the right people around you. और अनफॉर्चुनेटली बोलिए या लकीली बोलिए, जो भी मेरे लाइफ में जो भी लोग मुझे मिले या मुझसे टकराए, वो सभी लोग अच्छे थे। उन सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अभिना मैम है, विवेक सर है, अल्पना मैम है, मेरी श्रुता जो पुरानी मेरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थी वो है, गिरीश सर है, मैं उनको नहीं भूल सकती, क्योंकि उनके वजह से मैंने वर्ड पे, एक्सेल पे, कंप्यूटर पे ज्यादा काम, क्योंकि वो मेरे पीछे लगते थे, तुझे सीखना है, तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। तो कई कई ऐसे लोग हैं जो मेरी जिंदगी में है। कल्याणी है, जिन्होंने इतना सारा काम, उन्होंने भी सेम काम किया है मेरी तरह। कम्युनिटी में कई लोग हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे लोग मेरे आसपास है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। That's wonderful. That sense of gratitude also जो आप में है. Thanks, Urmi. Mohul, over to you. What has been like, you know, आपकी क्या जर्नी रही है as a trans man to reach? I know आप ललित में हो अभी, तो कैसे यहाँ कैसे पहुँचे आप? सो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि लाइक होता है ना कि जब आपकी लाइक मैं 3rd क्लास में था, तो मेरा अट्रैक्शन मैडम की तरफ हुआ था। एंड आई फील वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैडम है, बहुत अच्छी है एंड ऑल। तो उस टाइम मैं था ठीक है यार, बच्चा हूँ, मैं भी शायद हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि मैंने 6 से लेके 10 तक अपनी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से की है, जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था हमारा, मैंने उससे की है। एंड उस टाइम पे मुझे जब आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, आप बड़े होते हो, आपके साथ आपकी चीज़ें बहुत बदलती हैं, आप शारीरिक बड़े होते हो, आप मानसिक बड़े होते हो, राइट। तो उस टाइम पे बहुत अजीब सा एक दिमाग में था, एक अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था, लाइक सारी जो मेरे साथ की लड़कियां थी वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन मैं मतलब बाकी सारी लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती, लेकिन मुझे लड़कियां क्यों पसंद है। एंड उस टाइम पे फिर मेरे बॉय कट हेयर हुआ करते थे, मैं स्कर्ट एंड शर्ट पहन के स्कूल जाता था, तो टीचर्स का बुले करना कि तुम अपने बाल क्यों नहीं बढ़ाते हो, एंड तुम लड़कों की क्यों चलते हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों नहीं चलते हो, और तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद हैं, और ये एक फेस है, जब तुम 22-23 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा फेस निकल जाएगा। सो आई वाज लाइक ठीक है यार, अभी इतना मैं इतना माइंड नहीं करता था, बिकॉज मैं बहुत कूल टाइप का था स्कूल में। एंड बट जब आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, विच इज़ लाइक एक लड़कियों की शरीर में होती है मेंजुरेशन, पीरियड साइकिल उनकी। तो जब मेरी बॉडी में वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, सो आई वाज इन डिप्रेशन कि यार ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, क्योंकि मैं लड़का हूँ और लड़का का मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती। सो आई यूज्ड टू लॉक माई सेल्फ इन रूम। मैं उन दिनों घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने से डरता था, स्कूल स्किप करता था अपने। एंड उसके बाद मैंने सत्यमेव जयते देखा था, जिसमें मैंने गजल ढालीवाल मैम को सुना, उनको उनकी जर्नी सुनी, सिमरन शेख मैम को सुना, जेरी जॉनसन सर को सुना, दीपक कश्यप सर को सुना। उसके बाद मुझे पता लगा कि ओके चलो, एटलीस्ट मुझे एक रोशनी, एक उम्मीद कहीं ना कहीं मुझे मिल गई कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे होना है, क्या होना है। तो वो संडे को 2 टाइम आता था। मैं बता दूं, मैं सिंगल, लाइक मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, और मेरा भाई 1 साल का था। तो मैं मॉम ने दूसरी शादी कर ली, मैं अपने डैड के साथ था। तो एक दिन संडे को वो आ रहा था, मैंने अपने डैड को दिखाया एंड डैड वाज लाइक तुम्हें भी करना है।
आई सेड नहीं डैड, करना नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं। तो माय फादर वाज लाइक ओके फाइन। सो मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट करी, लाइक कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो काउंसलिंग करते हैं, कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हार्मोन्स देते हैं, कौन से ऐसे सर्जन्स हैं जो सर्जरीज करते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, कितनी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो आफ्टर ट्रांजिशन अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं। एंड जितने भी सत्यमेव जयते में आए थे, मैंने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थ्रू फेसबुक इंस्टाग्राम, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रिप्लाई नहीं आ पाया। बट उनमें से एक बहुत कॉमन इंसान मेरी जिंदगी में एक एंजल बन के आया, एंड शी इज अबीना अहर माँ। उनसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया, मैं उनसे मिला। उसके बाद मुझे ट्रांस मैन के बारे में पता हुआ कि जो फीमेल टू मेल होते हैं ना, ट्रांस मैन कहते हैं। एंड उसके बाद यस, इट्स बीन अ 1.5 ईयर लगा मुझे अपने डैड को मनाने के लिए। एंड बीच में ऐसा हुआ था, मेरे डैड मान गए, नहीं माने, फोन छीन लिया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एंड उनका ये था कि नहीं करना, बिकॉज सोसाइटी क्या बोल रही थी। सो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए। तो मैंने 1.5 ईयर का टाइम दिया उनको, एंड फाइनली वो मान गए थे। एंड मैंने उनको सक्सेसफुल स्टोरी दिखाई थी आर्यन पाशा की। तो उनको देख के आई थिंक उनके दिल में कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, जब एक इंसान कर सकता है तो आई थिंक मेरे को अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, शायद वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कुछ मोड़ आया कि मैंने 6 मंथ हॉर्मोन्स पे था। जुलाई में 2017 में हॉर्मोन स्टार्ट किए थे। एंड उसके 6 महीने बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ का एक टर्न अप आ गया, बिकॉज ऑफ मेरे को, मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ, मेरा एक छोटा भाई है आज 12 साल का। एंड तो वो था कि घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, राइट। तो मैंने एक लोकल बीपीओ में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। बट बिकॉज ऑफ मैं हॉर्मोन्स पे था, मेरी वॉइस इतनी मैनली हो चुकी थी एंड मेरे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए थे। उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू पे फोन काट के बोल दिया कि सॉरी, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके जो रिज्यूम पे आपका मेघा शर्मा फीमेल है लेकिन आपकी वॉइस लड़कों वाली है, हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा। सर लाइक ठीक है, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ पर मेरे को मुझे शर्मिंदगी होनी हो मिले हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो मैं 4-5 बीपीओ पे ट्राई किया बट नहीं हुआ। देन मुझे अबीना माँ ने ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में बताया, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के उन्होंने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसा मैं था। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका प्रेफर नेम क्या है, आपको क्या आइडेंटिफाई करते हो। तो आज तक है कि उन्होंने मुझे हमेशा मोहुल ही बोला है। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हो। मैंने बोला मेल, ट्रांस में। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा आइडेंटिफाई करोगे हम वैसा आपको देंगे। सो यस, मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है यहाँ पर। एंड यस, आज मैं, एक सपना था बचपन में कि लोग मुझे मोहुल शर्मा के नाम से जाने। सो आज वो सपना मेरा पूरा हो रहा है बिकॉज ऑफ ललित ग्रुप ऑफ होटल्स एंड ऑफ कोर्स केशव सूरी सर। वंडरफुल आपकी जर्नी। अगेन मैं अगर सुनूं तो आप, नैना और मी, आई थिंक ये बात है कि आप दिल्ली में थे, वो नैना तो स्मॉल सिटी में थी, फिर भी रोल मॉडल्स नहीं दिखे। जब तक आपने सत्यमेव जयते नहीं देखा, आप ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। सो द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वाज सो लिमिटेड। टुडे आई थिंक विद सो मेनी पीपल वर्किंग इन दिस स्पेस, एंड हमारी ये वेबिनार भी यही एक मकसद तो ये भी है कि ना, अगर और ट्रांस विमेन, ट्रांस मेन सुन रहे हैं तो एटलीस्ट दे हैव, यू ऑल आर शेयरिंग योर स्टोरीज एंड गिविंग करेज टू अदर people, so that's wonderful. Plus हम जैसे लोग भी, like all of us are hearing this and realizing कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे supportive होना चाहिए, and that is what we will share later. I'm very happy to hear about your experience ललित सूरी hotels के साथ, and वो अभी आगे हम लोग और बात करेंगे। उर्मी, आपने कभी सोशल सेक्टर से मेन स्ट्रीम कोई जॉब ट्राई किया, कॉर्पोरेट साइड में जाने की कोशिश करी है, और करिए तो क्या एक्सपीरियंस रही है आपकी? 1.5 साल पहले थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था हम सफर ट्रस्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि थोड़ा सा मैं रिलीफ चाहती थी बिकॉज थोड़ा ज्यादा टायर्ड अप हो गई थी। तो कई जगह मैंने ट्राई किया बट मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े से अच्छे नहीं रहे, और मुझे लगता है कि शायद से ये दोनों साइड से भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इतना
उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरीके से क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये उनको भी पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हमारे पास भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमसफर ट्रस्ट में भी कई सारे जो कॉर्पोरेट्स लोग आते थे और वो बोलते थे कि हमको भी LGBTQ को या ट्रांस कम्युनिटी को हमको हायर करना है, हमको उनको जॉब दिलानी है। बट उनके डिमांड्स ये रहते थे कि ग्रेजुएशन चाहिए, डबल ग्रेजुएशन चाहिए, हायर एजुकेशन के लोग चाहिए। सो आज के डेट में तो उतना सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है कि वो उनके पास सर्टिफिकेट्स और कुछ हो। मोस्ट ऑफ द इजड़ा घरानाज में, इजड़ा कल्चर में जब आप देखोगे तो वो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 80% लोग जो है वो घर से बाहर है, घर से भाग चुके हैं या घर से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब इश्यूज है। उसके वजह से कई सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स को भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं है ना कि अगर ज्यादा एजुकेशन हो उन लोगों को ही काम पे रखे, अगर इनका एजुकेशन कम हो उनको काम पे ना रखे। इट्स नॉट लाइक दैट ना। क्यों नहीं, मेरा मेरा बात करने का तरीका अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर अच्छा है, क्यों नहीं, क्या क्या मुझे रिसेप्शन की जॉब नहीं मिल सकती, क्या मुझे बैक ऑफिस में काम पे नहीं रखा जा सकता। बट ये अभी तक अवेयरनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में आने की जरूरत है, क्योंकि ये हम बहुत देख रहे हैं। क्योंकि कितने सारे लोग हैं आज के तारीख में ना जो ट्रांस कम्युनिटी से है, जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं, और आज वो ही वो आइडल है। पर ऐसे और लोग होने जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन कम होना ये एक बात है, पर स्किल भी तो कुछ ना कुछ तो होती है ना। आप अगर फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो वहां पर एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल भी इम्पोर्टेंट होती है, तो ही आपको कहीं पे जॉब पे रखा जाता है। तो फिर ये हमारे पास क्यों नहीं करते हैं हम सिर्फ एजुकेशन को, हमें मानती हूँ कि एजुकेशन होना चाहिए, ये जरूरी है। बट ये कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए और एक पर्व जाएगा, और एक युग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये इतना अवेयरनेस, इतना सेंसिटाइजेशन कम्युनिटी में भी आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि इतना सालों से जो चीजें चल रही है वो भी हटाकर कहीं और, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता। चेंज नॉट इज कमिंग इन वन नाइट, है ना। एक रात में अब नहीं होता है ये। तो ये कोई फेरी टेल नहीं है ना, कि मुझे सपना आया और कोई सफेद घोड़े पे राजकुमार आया और मुझे लेके चला गया। सो रियल लाइफ कुछ अलग होती है। सो वो भी है, बट कम्युनिटी भी के लोग भी, जो आज के जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए कई सारा स्कोप है, उनके लिए कई सारी चीजें ओपन है, उनके लिए कई सारी चीजें। हम जब स्कूल्स में थे, हम जब क्योंकि मैंने तो कॉलेज किया ही नहीं, हाँ पैरा प्रोफेशनल का मैंने 6 महीने का कोर्स किया, तभी मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं भी कॉलेज लाइफ जीऊं करके। बट आज की जनरेशन को एजुकेशन है, कई सारे लोगों की फैमिली एक्सेप्ट करती है, अपने बच्चों बच्चों को कर रही है। जो इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर से वो अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कई सारा स्कोप है। बट बात ये है कि उन्होंने भी आगे उतना आना जरूरी है। अगर क्योंकि आपको प्यास लगती है तो आपको पानी तक जाना पड़ेगा, पानी तो खुद आप तक नहीं आएगा, है ना। तो वो भी चीज है। बट कई सारे मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, क्योंकि एज अ हम सफर ट्रस्ट, एज अ ट्वीट फाउंडेशन, हमने कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ सेशंस लिए हैं, एडवोकेसी की है। आप भी वहां पर मेरे साथ एंगेज थी, हमने कई बार किए। बट हमने कितने लोगों को लगाया काम पर, है ना, कितने लोग काम पर लगे। तो ये अभी भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ उनके पॉलिसीज में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, कि जरूरी नहीं कि बीकॉम किया है, हायर एजुकेटेड है, डबल ग्रेजुएटेड है तो ही उसको नौकरी मिलेगी। अगर कोई टेंथ पास है, 12th पास है, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो आप काम दे सकते हो ना। बट ये वैकेंसीज भी निकालना आपकी जरूरी है। और मैं छोटा सा एक पॉइंट इधर जोड़ना चाहूंगी कि नॉट इन कॉर्पोरेट में हमेशा जोर देती हूँ, शायद आपने सुना होगा अनुपमा मैम, क्योंकि एज अ हमसफर ट्रस्ट थ्रू हो या ट्वीट फाउंडेशन हो, मैं हमेशा जोर देती हूँ कि नॉट ओनली कॉर्पोरेट, ये गवर्नमेंट का भी जिम्मा है।
ये गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी उतनी ही है कि कुछ भी अगर जॉब वैकेंसीज आती है तो वो उतना से ही पब्लिश करते हैं, जितना कॉन्डम की ऐड करते हैं, जितना विस्पर की ऐड करते हैं, उतनी जॉब वैकेंसीज की भी ऐड उतनी ही तरीके से करते ओके, सो फ्यू थिंग्स आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पिकअप मैंने किया है कि एक तो ये है कि नॉट एवरीबडी इज ग्रेजुएट, तो एजुकेशन एंड ये नहीं कि बिकॉज ग्रेजुएट नहीं है इसलिए स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स तो है, हर किसी को अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, तो इस स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को देख के जॉब्स प्रोवाइड जॉब वैकेंसीज क्रिएट कर सकते हैं और ऊपर से स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये स्किल डेवलपमेंट की बात हम लोग थोड़ी देर में जरूर करेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है और मैंने आपको कई बार भी सुना हुआ है ये बोलते हुए कि गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि ट्रांसजेंडर जॉब्स के बारे में वो भी एडवोकेसी इक्वली करें। आई थिंक वन ऑफ द थिंग जो आप लोग ये भी बोल रहे हो कि यू नो कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कोटा फॉर trans jobs. Naina, from the dark spot, I want to ask you a question. What kind of stigma, discrimination have you faced, you know, in your till you reached ThoughtWorks? I know ki you also looked at different jobs before you reached, you know, came to a company like ThoughtWorks. Yeah, of course, I faced a lot of discrimination, but I always overcame that. It was always in my mind that we are also part of society, and opportunities given. Even we can do it. Maybe we are not come from higher education background, as Urmi said. So, but there's one plus advantage for me was my computer education, and I never gave up. And like she said, pani tak nahi. Pani भैंस के लिए पानी के साथ खुद हम जाना पड़ना है, पानी हमारा पास नहीं आता है, like that. I never kept quiet. I started banging each of the door. Like साथ सिमचा कुलजा सिम के लिए नहीं बैठी थी मैं, क्योंकि एक जगह जाती थी, उधर टैप करती थी. इफ इट्स फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड. So small voice modification, even in interview I faced, because that was the reason I felt that I never find a job. I'm talking about 15-20 years back now. Especially here in Bangalore, IT jobs are opening, and a lot of when I joined, I never found anybody. I never saw any trans community, and there are class mass of English speaking class. Wow. Power came finally. So English speaking, non-English speaking, because generally when I go out for sensitization programs in a lot of IT companies who wanted to open doors for LGBTQI community, it's already there, but the trans communities are still not there. Either udhar dikhte hain. Lekin when I go there, I see the differences between, like, but you can make out the people, action, reactions. But I always felt that I am also an employee. Gender identity, sexuality, gender identity comes next. That always, for me, it was my dream. I'm chasing my dream. For me, दूसरों का परवाह नहीं है. So what job is given to me, मेरे को I have to finish it and give it. I always, rather than buck karne se, I try to complete my job and keep it. I always baat se kaam nahi hota hai. So I always, it was my, people, even now they ask, what Naina next? You reached so much. Today also I was the team meeting. Oh, Naina, I said, just casual talk along with our team and all, after a long time, lockdown. Our marketing head, she wanted to talk to everybody and see each individual's face. And then I just, she was asking one by one. And others were also, I'm watching web series and that, this, and cooking and this. And I said,
Of course, I watch movies, but I done one webinar and today I have a webinar. Then suddenly my colleague said, "You are a celebrity." I said, "No, when you people say you're celebrity, activist, no." My motivation was only the thing was that, yes, I'm a woman, I'm a trans woman. Yes, opportunities given, job, maybe small job, as Urmi was telling, depend on their ability and education, a little bit of skill development, same like ThoughtWorks has done for me. My computer course was outdated, so sent me for training also, because ThoughtWorks strongly believes in everyone is included, and diversity inclusion was maybe now it is taken by some other company, but when I joined, our founder was there, Roy Singham. I always proudly say he was the one person. Maybe he comes, as I told you, actually we are from US based company. We are around 14 plus countries and 7,000 plus employees. And again, those days I remember he comes from US and he come and talk to me, being a founder. That's the inclusion. He's a big inspiration. When I take his name, goosebumps comes. And the people around me, I used to, when I boarded into ThoughtWorks, people were asking so many things, and special washrooms and all. I said, no, nothing. I am like other employee. I don't need any extra sympathy or support and all. And like other employee, I am that way. My journey with ThoughtWorks. Okay, thanks, Naina. So I think what's really come across from what you're saying, और जो उर्मी ने बोला है कि आप लोगों में, आप में इंटरेस्ट है काम करने का, आप एक करियर चाहते हो, एंड द कॉर्पोरेट ऑल्सो नीड्स टू मेक, जैसे आपने बोला ना कि प्यास लगे तो आपको भी कुआं तक जाना पड़ेगा, तो कभी कभी आई थिंक अगर कॉर्पोरेट्स को कुआं माने तो कुआं भी थोड़ा पास आना, कुछ तो बीच में वो जर्नी स्मूथ होने के लिए दोनों को थोड़ा काम करना जरूरी है. But from both sides, एक हाथ से ताली नहीं बजता है. So exactly. Yes. Exactly. So मोहन, मुझे बताइए कि आप भी जानते हो, और जैसे आप सबने बोला है कि आप ऑल थ्री ऑफ यू, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बहुत आपने डिप्लोमा जैसे कोर्सेज किए हैं. सो मोस्ट ट्रांस पीपल शायद इस लेवल के एजुकेशन में रहे होंगे, तो कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना ही नहीं चाहिए? आपका क्या राय है इसके बारे में? वेल मैं ये बोलूंगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी स्किल क्या है, आपका जो आपके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं वो क्या है. ऐसी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, एंड आई डोंट थिंक कैसी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये मेरे पे जैसे मैंने कभी होटल इंडस्ट्री के बारे में कभी नहीं सुना था. मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई इंडस्ट्री भी होती है. बट ड्यू टू टाइम में कैसा आया था कि मैं बाय डिफॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पहुंच गया. बट यस, वहां पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ यार, मेरे अंदर ये स्किल है. मैंने वो स्किल ट्रेनिंग का कोर्स किया है, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग का कोर्स किया है. वहां पर मैंने अपने आप को प्रूव किया. बिकॉज हम कभी कभी क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोग जॉब देने के तैयार होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि यस. कभी कभी क्या होता है ना कि हक लोग देते हैं, बट कभी कभी वो हक हमें छीनना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट, वो स्किल हमारे अंदर है. और ऐसे आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगी जहां पर ये सब चीजें हैं. बट आपको इंडस्ट्री अपने हिसाब से बनानी है कि आप उस चीज के कैपेबल हो. और जब आप कैपेबल किसी चीज के हो ना, तो आई बेट यू मैम, कोई ना कोई इंडस्ट्री आपको जरूर चुरा के और उड़ा के लेके जाती है. सो मुझे बताइए, जैसे आपने बोला आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप होटल इंडस्ट्री के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, आपको मालूम भी नहीं था ऐसे प्रोफेशन के बारे में. तो कई लोगों के साथ ऐसे हो सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि क्या जॉब्स पॉसिबल हैं, बिकॉज नॉलेज भी उतना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम, उसके लिए हम लोगों ने जैसे कि बैक टू बैक जॉब फेयर्स हो रहे हैं, राइट. उसमें कई ऐसी एमएनसी कंपनीज आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल आती है, शेंसर आती है, ललित आया था, एंड काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एनजीओज आती है वहां पर. तो हमें थोड़ा सा ना एक्टिव होने की जरूरत है. ऐसी बात नहीं है कि लोगों ऑफर नहीं दे रहे, लोग ऑफर भी दे रहे हैं. बट डिपेंड आपको करता है कि जैसे कि अब दिल्ली में हुआ था जॉब राइस फेयर, राइट.
तो थोड़ा सा मैम आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहां पर जब तक आओगे नहीं, आप लोगों से मिलोगे नहीं, वहाँ कंपनीज को इंटरव्यूज नहीं दोगे, तो कंपनीज को भी कैसे पता लगेगा कि हमें अपने चीजें क्या कैसी रखनी चाहिए। एंड आई टोटली एग्री विद उर्मी मैम एंड नैना मैम के कई ऐसे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड नहीं होते। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट 10th पास आउट, मैंने 11th-12th नहीं करी है, राइट। बट हाँ, मेरे को चांस मिला कि मैंने अपने आप को प्रूव किया। एंड वो डिपेंड करता है कि जब आपको एक चांस मिले तो आपको वेट नहीं करना, सोचना नहीं, आपको तुरंत वो चांस पकड़ लेना है। एंड ऐसे ही लाइक अभी इससे पहले 2 बैक टू बैक राइज ने जॉब फेयर करवाए थे, तो उस जॉब फेयर में हम आ सकते हैं। एंड जैसे कि अभी ललित है एंड HIV एड्स अलायंस है, वहाँ भी जॉब के ऑफर्स निकलते रहते हैं। हम सफर ट्रस्ट है, वो भी जॉब के ऑफर्स निकालता रहता है। तो वही कि जो ऐसे लोग हैं उन लोगों से मिलने की जरूरत है और उनसे अटैच रहने की हमें जरूरत है, जो मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके। उर्मी, हिजरा कम्युनिटी में टिपिकली ये क्वेश्चन आपके लिए है, नॉर्मली जो हिजरा घराना है उसका ही ऑक्यूपेशन बाकी चेलों को भी वही करना होता है। तो हिजरा कम्युनिटी से हट के अगर किसी को कोई और मेन स्ट्रीम जॉब ढूंढना है तो आसान है, डिफिकल्ट है क्या? अगर आज के तारीख में बोला जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पहले पहले काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे कम्युनिटी के, कई सारे रूल्स थे, है ना, कि 15 साल पहले NGOs आए तभी भी कई सारे ऑब्जेक्शंस आए कि क्या NGO में काम करते हो आप लोग वगैरह ऐसे। बहुत लोगों ने तो नाम रख दिया था ऑफिस वाली, बिकॉज मैं भी जब आउटरीच का काम करती थी तो मैं कॉन्डम बांटने जाती थी, तो स्पेसिफिक तो जो हिजरा के घराना के जो जहाँ के उन लोग रहते हैं स्लम्स में वगैरह, वहां पर जाके मैं कॉन्डम देती थी, तो स्पेसिफिक वो लोगों ने मुझे नाम ही रख दिया कॉन्डम वाली आलिमा, है ना। सो बट तब का सीन अलग है और अभी का 15 साल बाद का अभी का सीन अलग है ना, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल रही थी ना कि बदलाव जो है वो आते रहेगा, होके रहेगा, उस पर वो एक दिन में नहीं हो रहा है, पर ये हो रहा है, क्योंकि पहले की जो चीजें थी वो अलग थी। अभी कुछ जो बड़े बुजुर्ग है, गुरु लोग हैं, उनके जो बड़े गुरु लोग हैं, उनकी भी सोच थोड़ी सी बदल रही है। कई सारे जो कम्युनिटी लीडर्स है, अबीना मैम है, रंजीता है, गौरी है, ऐसे लोग जो है उन लोग भी अपने हिजरा कल्चर में सेंसिटाइजेशन का काम कर रहे हैं कि नहीं, लोग अगर बाहर कुछ करना चाहते तो उनको उनको कर देना चाहिए। बट थिंग इज कि कई सारे लोगों का बोलना ये भी है कि आप कल्चर को मत ब्रेक करो, कल्चर की चीजों को मत आप ब्रेक करो, तो ये थोड़ा बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। बट इज नॉट, अभी मुझे नहीं लगता कि वो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल रहा है। और अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे तो अभी के टाइम पे हमें हमारी जो भी ट्रांस कम्युनिटी है उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जिस तरह से मेहुल ने भी कहा उस तरीके से, क्योंकि भले आप 10th पढ़े हो या 12th पढ़े हो, अभी आप एज अ कम्युनिटी का कोई भी जॉब कर रहे थे अभी तक सेक्स वर्क कर रहे थे या भीख मांग रहे थे या शादी ब्याह में जाके नाच गाना कर रहे थे, अभी 3 महीने से आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अगर अभी अभी क्या करोगे, तो अभी आपको बाहर आके, मतलब अभी कम्युनिटी को स्टैंड लेना पड़ेगा, बाहर आके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि मैं भी तो 4 जगह गई कॉर्पोरेट में, मैंने इंटरव्यूज दिए, तभी तो मुझे पता चला ना कि सच्चाई क्या है। मैं कितना, मेरा एजुकेशन लेवल कितना है और उनकी सोच कितनी है, उनका थिंकिंग कितना है कॉर्पोरेट का, तो ये है। बट ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरी गुरु है अबीना जी, उन्होंने भी कभी मुझे रोका टोका नहीं, ये नहीं किया, क्योंकि मैं उनका उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके जो बुजुर्ग है मैं उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं कल्चर को भी उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जितना काम के प्रति डेडिकेटेड हूँ, मैं उतना ही कल्चर के प्रति, अपने गुरु के प्रति भी उतना ही डेडिकेटेड हूँ। तो ये बैलेंस भी हमको संभालना पड़ेगा। अगर आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करोगे तो माँ बाप भी तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो सिमिलरली लाइक दैट। एक्चुअली आप जो बोले तो मुझे बिल्कुल फैमिली जैसा स्ट्रक्चर का ही ख्याल आया कि जैसे एग्जैक्टली जैसे आपने बोला ना, माँ बाप जैसे जो भी रूल्स और जो भी कल्चर वैल्यूज देते हैं उसमें ही हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। और मैं जानती हूँ अबीना खुद ही एक्चुअली जॉब करती है, एजुकेटेड है, तो उसका भी एक असर आपके ऊपर डेफिनेटली रहा है। मैं खुद ही देखती हूँ कि अबीना कितना इनकरेज करती हैं जो भी उनके साथ हैं,
उनको जरूर वो encourage करती हैं कि वो jobs करें। अभी ना आप हो और आप सुन रहे हो, I know। So दो क्वेश्चन है मोहल, आपने एक बोला कि जॉब फेयर्स हो रहे हैं, कम्युनिटी को खुद आगे बढ़ के जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किया है, कई लोग ना बहुत डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे जाके जॉब फेयर में भी क्या होने वाला है। दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस? आई थिंक फर्स्ट। सो मैम अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सी दो तरीके हैं हमारे पास। एक आप ऐसे जॉब जाओ अपने आप, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत खुल के आंसर देना चाहूंगा कि या तो आप एक ऐसी जगह जॉब करने जाओ जहाँ के आपको पता ही नहीं है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, राइट, कंपनी में कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या कंपनी का एचआर सेंसिटाइज है या नहीं है, क्या कंपनी के लोग सेंसिटाइज है या नहीं है। या तो आप एक ऐसी कंपनी के पास जा सकते हो जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, बट आप एक ऐसी जगह जा सकते हो जहां पर एक जॉब फेयर काइंड की चीज हो रही है, जहां पर कंपनीज ऑलरेडी आ रहे हैं, उसके सीईओ वहां पर बैठे हैं, एक अलग से एक सेशन होता है जहां पर आप लोगों से मिलते हो, उनकी पॉलिसीज आपको अपने सामने बताते हैं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम कि आप अगर कोई कंपनी जॉब फेयर में आ रही है दैट मीन्स वो सेंसिटाइज होगी। जो इंसान सामने बैठा है एचआर वाला इंटरव्यू ले रहा है विच मीन्स वो सेंसिटाइज होगा, राइट। तो आई नो कि बहुत डर होता है एक ऐसी जगह जाने पे जहां पर पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मैम कभी कभी हमें खुद से आगे पैर बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक राइट। और हाँ, गो अहेड। सो वही वाली बात है कि आप एटलीस्ट आओ वहां पर। मैं ये नहीं बोलता ठीक है आपको टाइम डर लगता है कि आप लोगों से कैसे इंटरव्यू देंगे, पता नहीं लोग कैसे होंगे, बट एटलीस्ट वहां पर आके लोगों से बात करो, वहां की कंपनी से बात करो। एटलीस्ट आप एक बार जाके अपना इंट्रोडक्शन दो उनको। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम मैंने जितने भी अब तक के जॉब फेयर्स देखे हैं वहां के सारी कंपनीज के एचआर बहुत सेंसिटाइज होते हैं, बिकॉज वो आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर प्रेफर नेम, अच्छा आप अपने आप को क्या प्रेफर करते हो, हिम हिज या दे देम। तो वही सब चीजें हैं कि अब टाइम, ऐसा बात नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट मैम बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हम सोसाइटी में जैसे एक बार में एक रात में, जैसे उर्मी हमने कहा था आप एक रात में नहीं जीत सकते, ये एक जंग है जिसे लड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसी बात नहीं है कि पिछले आपने देखा होगा जब से सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ है तो काफी कॉर्पोरेट सेक्टर सामने आ रहे हैं, खुद आते हैं कि नहीं हमें ऐसे लोग चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि नहीं यार इन लोगों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, सिर्फ वो टैलेंट उठाने की देर है। That's nice। एंड अभी तो जून में प्राइड मंथ है, सो सारे कंपनीज मुझे मालूम है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि स्पेशली दोस्त जैसे आप बोल रहे हो जो सेंसिटाइज्ड हैं कि वेरी आउट एंड doing lot of work to show that they are LGBT inclusive. Naina, yeah, I want to add on one point, sure. because as I told you, ThoughtWorks started pretty early, when I joined, as I told you, next month I'm completing 6th year and getting into 7th year. 2 years back, we are done for especially fresh graduates, we are done course like, who are technically from colleges around India. It's called Interning with Pride. We selected a few members from LGBT community, and we are given training for 4 months, and they are done pretty well, and we are hired also. We participate in a lot of job fairs, and there are a lot of companies now. For example, in like Manada Tech Park here in Bangalore, tech parks, even a lot of communities. I want to name few, like I came through Solidarity Foundation and Ferry Ferry. We are associated with Ferry Ferry, so we are doing job fair. Recently we given space, and we are giving training, and we are part of their that working and supporting and training, and we done job fair also. We recently we hired also few LGBTQI members. So I can't say that, that again, as I told you, community also has to show interest, so that is also a very important point, we have to, yeah.
Yeah, sorry. I'm just going to interrupt. I want to know what are some of the policies and inclusive practices at ThoughtWorks that makes it a great place for a trans person to work? Yeah, we have policies, all policies, zero discrimination, and I'll read out, because I thought of reading out as I told you. So I can, 1 minute, just give me a minute. Sure. Before ending, I'll read out that, points. It's a pretty interesting points. So I would like to share it with you all. Okay, so shall I, till you take it, are you ready with that point? I'll read out, Hmm. I don't face any subconscious or outward biases from my co-workers at ThoughtWorks because the culture here is extremely progressive with zero tolerance for discrimination of any kind. In fact, this place has given me a platform to talk about my experience and share my learnings and suggestions for better diversity and inclusion at various internal and external diversity initiatives. So this is again my quote for Pride Month for social media. Okay, okay, This is okay. all the important points take care of, because I can add one more point, because I deal with vendor management and event payments and also. So the vendor was not treating me properly, the issue became, so ThoughtWorks supported me to change vendor also. If I face such, Ah, always our higher authorities, even MDs, I can simple pretty question. MDs in Bangalore office, especially we come from non-English speaking background, they are all MBAs and all, my education is also not that high, but the inclusion of leadership also makes very important, and your colleagues also, that how, even at pantry I was hesitating to talk to my MD, and I said, sir, he always says, what Naina, you don't call me sir and all, they are so friendly, hello, hi, how much ever busy era, that gives, their power of, into, and, daily going to office, meeting people, people will ask, we have to share them what's trans, as I told you, uh, doing base level to CEO level sensitization before boarding any community into your organization. That things taken care by ThoughtWorks, because ThoughtWorks culture is such, that made me easy to gel into people, society, that makes a very important, great place to work also. ThoughtWorks is hmm. Hmm. that Yeah, how. yeah, very clearly, Naina. I think the fact that there is very openly stated and strongly stated zero tolerance for discrimination, vendors being sensitized, these are really very big initiatives that the company has taken. Mohul, can you tell us a little bit about what Lalit Hotels has got, in terms of policies to create an inclusive environment? Okay, so ma'am, first of all, we have a EIG groups. Like Mm, आपको अक्सर क्या होता है कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपके पास लोग नहीं होते बात करने के लिए, राइट? mm, mm, अपनी चीजों को शेयर करने के लिए लोग नहीं होते. So we have a employee resource group and we have a diverse policies. Like हमारे पास इंश्योरेंस है उन लोगों का जो लोग अपनी सर्जरीज करवाना चाहते हैं, जेंडर अफर्मेशन सर्जरीज करवाना चाहते हैं, हम उनको इंश्योरेंस देते हैं. हम लोग सेम सेक्स पार्टनर का भी इंश्योरेंस देते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, हम राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई का भी हम लोगों को बोलते हैं कि आप बताओ कि आपको किस चीज से जानना है. आप अपने आप का एज अ मेल mm, डिफाइन करते हो, आप मेल करो. अपने आप को फीमेल कहना है वो करो. एंड अपार्ट ऑफ दैट, अब अगर आप बात करते हो इंक्लूड डाइवर्सिटी पॉलिसीज की, राइट, सो हम लोगों के पास, हम लोग ऐसे अटैक सर्वाइवर्स के साथ भी काम करते हैं. हम लोग डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं. हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा है. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इंक्लूसिव डाइवर्सिटी, तो वो हर तरीके से डाइवर्स और इंक्लूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर ऑल, राइट. mm, एंड सबसे बड़ी बात, हमारे पास जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं हमारे पास. कि अगर ठीक है कोई प्री ट्रांजिशन है, लाइक कोई वुमेन है, ट्रांस वुमेन है जो अभी उसने सर्जरीज नहीं करवाई है, फिर वो अभी
हॉर्मोन्स में नहीं है, तो एक ऐसा वॉशरूम है जहाँ पर वो अपने आप को वहाँ जा सकता है, राइट। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हर एक इंसान सेंसिटाइज है। लाइक जैसे कि कोई ट्रेनीज आता है, कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, तो हम लोग इंडक्शन में ही LGBTQ कम्युनिटी का उसमें टॉपिक डाल देते हैं, तो एटलीस्ट लोग आते के साथ ही वहाँ सेंसिटाइज हो जाएं, जैसे आगे जाके डिस्क्रिमिनेशन का चांसेस ही ना हो। और अगर इनकेस डिस्क्रिमिनेशन कभी हो भी जाता है तो वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज। हम इस चीज में नहीं करते, चाहे फिर वो LGBTQ कम्युनिटी का हो, चाहे फिर वो मैम विमेन का हो, या फिर चाहे फिर वो मेन का क्यों हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वुमेन के ऊपर या LGBT कम्युनिटी के ऊपर नहीं होते, डिस्क्रिमिनेशन एक लड़के के साथ भी हो सकते हैं, Sure. राइट, बुली उसके साथ भी हो सकता है। तो हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज है फॉर एवरीवन। एंड मोहुल, आपने कई इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बताई, कैसे आप गेस्ट्स को सेंसिटाइज करते हैं। कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट दैट? हाँ, श्योर। सो हम गेस्ट को सेंसिटाइज करने के लिए हमारे पास KTSU में थर्सडे नाइट्स हैं जहाँ पर ड्रैग क्वींस आती हैं। अपने हम ड्रैग क्वींस, हमारे पास नेशनल भी हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ड्रैग क्वींस भी आते हैं, हमारे पास रेनबो केक्स हैं जिससे लोगों को, गेस्ट को पता लगता है कि हाँ रेनबो मीन्स LGBTQI, राइट। हमारे पास रेनबो केक है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास एल्फी है, हर रूम में एक छोटा सा एल्फी है। जस्ट होल्ड फॉर मिनट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो एल्फी कैसा होता है, जस्ट होल्ड फॉर मिनट। सो हमारे पास ये एक छोटा सा एल्फी होता सो है। क्यूट। हाँ, सो हम लोग ये सारे रूम्स में रखते हैं तो जिससे कि गेस्ट सेंसिटाइज हो जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ दैट हर रूम्स में एक एल्फी एंड द पिकॉक करके हमारे पास बुक्स होती हैं, वो भी होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, लोग सामने से आके भी, लाइक हमारे पास एक मुंबई में ट्रांस वुमेन है जो मेन रिसेप्शन पे काम करती है, चंडीगढ़ पे हमारे पास एक ट्रांस वुमेन है, ठीक है, एमी चौहान नाम का है, वो ट्रांस वुमेन भी है। सबसे बड़ा तो फिजिकल चैलेंज भी है, वो भी हमारे साथ फ्रंट में काम करती हैं वो। एंड मैं भी फ्रंट में काम करता हूँ। सो हम ये भी है कि हम एम्प्लॉयज के साथ साथ हम गेस्ट का भी ध्यान रखते हैं कि वो भी हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर किसी को आना होता है, लाइक कोई सेम सेक्स कपल आ रहा है, अगर वो जो उसकी है, उसको सिर्फ नॉर्मल एक डीलक्स रूम चाहिए, उसको सिर्फ क्वीन बेड चाहिए, तो हम सिर्फ वही प्रोवाइड करते हैं। हम ये नहीं पूछते कि आप दो लोगों, आपको अलग अलग बेड चाहिए या फिर आपको क्या है, कैसे, जैसा गेस्ट बोलता है हम लोग उसे वैसी प्रेफरेंसेस देते हैं। अमेजिंग, वेरी ट्रूली अमेजिंग पॉलिसीज। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप जैसे बोल रहे हो मोहुल, आपके अंदर इतना सेंस ऑफ प्राइड है कि आप you're a great brand ambassador for Lalit group of hotels. लिटरली ऐसे लगता है कि हम उनके लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। रियली ग्रेट। उर्मी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम इंक्लूजन की बात करें या वर्ड इंक्लूजन बोलें, तो आपको इंक्लूजन से क्या समझ, लाइक व्हाट डू यू एसोसिएट इंक्लूजन विद? मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगर इंक्लूजन वर्ड की अगर आप बात करते हैं, मैं सोचती हूँ कि इंक्लूजन मतलब इक्वालिटी, सबको एक नजर से देखना चाहिए, सबको एक नजर से ही तोलना मापना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्रांसजेंडर अगर ऑफिस में है तो फिर बाकी के लोग कहीं और जगह जाके टिफिन खा रहे हैं, उसको टॉयलेट यूज नहीं करने दे रहे हैं, है ना। बहुत बार मतलब मैंने भी एक्सपीरियंसेस किया है कि हम तो एडवोकेसी करने चले जाते हैं, लोगों को तो कॉर्पोरेट के बड़े लोगों को तो पता होता है ऑफिसर्स को कि हम किनके साथ आ रहे, पर वॉचमैन को मालूम नहीं होता है। तो कई बार मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मुझे 2-3 बार रोक दिया गया वॉचमैन ने कि अरे आप अंदर नहीं जा सकते, है ना। सो मेरे जो कलीग थे उन्होंने बोला नहीं ये हमारे साथ है, हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। सो और ये मुझे लगता है कि जो भी हम लोगों के साथ करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ हो या किसी कॉलेजेस के साथ हो, पुलिस के साथ हो, लॉयर्स के साथ हो, किसी के भी स्कूल्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, इसका फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार जो कंपनी में होते हैं लोग बदलते जाते हैं, जैसे मोहुल ने भी कहा कि नए लोग आते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट होती है, लोगों की पोजीशंस चेंज हो जाती है, लोग ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहाँ। सो ये इसका फॉलोअप भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक बार करके खाना एक बार पका के तो चलेगा नहीं ना, वापस तो हमको शाम को भूख लगेगी। तो हमको ये भी इस तरीके से प्लान करना पड़ेंगे, क्योंकि और हमको थोड़ा सा ध्यान उस पे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जिस तरह से मोहल ने भी कवर किया, तो मैं थोड़ा सा उसी पे पॉइंट कर रही हूँ, हाईलाइट करी हूँ कि कई बार थोड़ा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई सारे लोग जो होते हैं वो हार्मोनल ट्रीटमेंट पे होते हैं,
तो बहुत बार लोगों में इस वजह से लोगों में इरिटेशन होता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है ना, लोगों का थोड़ा सा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये चीजें भी ध्यान रखनी जरूरी है। लोग हार्मोन्स पे होते हैं या लोग ऑपरेटेड होते हैं, तो उस पीरियड में भी क्या कॉर्पोरेट हमको क्या सुविधा दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, वो भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार होगा कि शायद कोई और बीमारी हो सकती है, कोई इंसान HIV पॉजिटिव हो सकता है ना, अगर तो उसको दवाई खानी है, अगर वो सबके सामने दवाई कैसे खा पाएगा, तो फिर वो दवाई नहीं खाएगा तो फिर वो काम पे कैसा खड़ा रहेगा, काम पे खड़ा नहीं रहेगा तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, उसके मार्क्स चले जाएंगे, तो फिर वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगा। अगर कोई हार्मोन्स पे है, अगर क्योंकि आजकल आप देखो तो हर दुनिया में सभी के पास टारगेट है, आपके पास है, मेरे पास भी है ना, आप काम करते हो या नहीं हो, सबको टारगेट है ना, इज नेवर माइंड कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, आप घर में भी हो, एक हाउसवाइफ है तो उसको भी टारगेट है। सो टारगेट अचीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे इसमें मेंटल हेल्थ का किस तरीके से हम ख्याल रखें, किस तरीके से उनको हम ये कर सके, तो वो भी चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। कई सारे कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है कि वहां पर कुछ ना कुछ गेम का वगैरह सेक्शन अलग से होता है ना, इस लाइक, बट इस तरीके से अगर कॉर्पोरेट्स में थोड़े से इस तरीके से भी अगर काउंसलर्स हो, या जिस तरीके से माहौल कह रहा था कि कोई बडीज हो जिनसे हम बात कर सके जाके, है ना, मुझे आज फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं किससे बात करूं, मैं बहुत बार मेरे गुरु से बात करती हूँ, मैं बहुत बार मुझे ऑफिस में अगर बहुत मेरे को वर्कलोड हो गया, क्या हो गया, मैं मेरे कलीग से बात करती हूँ, मेरे सीनियर से बात करती हूँ, या मेरे काउंसलर से जाके बात करती हूँ। तो अगर कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ हुआ तो मैं कहाँ पे जाके बात करूँ, वहाँ इस तरीके से भी कोई चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हार्मोन्स के ले रहने की वजह से कई बार लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लोग खुद होके भी जॉब छोड़ देते हैं, है ना। So, और कई बार हो सकता है कि लोग शायद अपनी जान लेने की भी कोशिश करें, ऐसे भी केसेस होते हैं। सो मैं ये सो आप जो बोल रहे हो उर्मी की इंक्लूजन आपके लिए इट मींस लाइक इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फैसिलिटीज फॉर एवरीबडी, और इसमें आप ये भी बोल रहे हो कि आई थिंक मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई सारी कंपनीज आई थिंक स्पेशली जो अभी जॉब फेयर में आते हैं, मेनी ऑफ देम हैव एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम एंड काउंसलर्स। आई एम होपिंग कि ये काउंसलर्स, बिकॉज इस मामले में LGBT related issues के लिए there is separate training, and I know I think a couple of years back TIS and the Mariwala Health Foundation have started a special training program for counselors on handling LGBT related issues. So I think इस space में भी अभी काफी काम है। I think organizations, one of the policies and benefits में ये भी होना चाहिए कि can you provide specific counseling support, आप जो बोल रहे हो। I just have one last question, which is for all of you, is that, and participants, if you want to ask any question, you can quickly start putting on the chat box. ये क्वेश्चन है आप सबसे, एक एक लाइन में भी आप बोल दो कि हम सब की तरफ से हम क्या कर सकते हैं टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ इंक्लूजन। यू नो, आई एम एन एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप मेरी कंपनी में काम करने आ रहे हो, तो मैं क्या बिहेव करूं, क्या करूं? यस मोहल, आपने हाथ उठाया। ओके, सो मैम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि बीइंग अ एलाय, लाइक आप पूछ रहे हो कि अगर मैं एलाय हूँ तो मैं किस तरीके से अपने फ्रेंड्स में सपोर्ट कर सकता हूँ। मैम अगर मैं इसका एक आंसर दूं तो सिर्फ ये है कि एक्सेप्टेंस, कि जो इंसान आपके साथ है वो जैसा है आप उसे वैसा ही एक्सेप्ट करोगे ना, हमारे लिए बहुत है। लाइक अगर आप उसको ये भी बोल दोगे ना, चल ठीक है तू जो है जैसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ या मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, और तेरे को कभी भी कोई भी जरूरत तुम मुझे या तो फोन कर लो, यू नो मैम, उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे याद है कि मेरे पास लाइक कोई बात करने के लिए उस टाइम पे नहीं था, जब मैं स्कूल में मेरे को डिस्क्रिमिनेशन होता था, बुले करते थे टीचर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो बस वही है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है तो उसको सिर्फ एक चीज बोलनी है कि तू जैसा है, जो है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम तेरे साथ हमेशा खड़े हुए हैं। बस ये एक लाइन ना हमारे अंदर, सभी के अंदर एक मतलब एक उम्मीद खड़ी कर देते कि हाँ चल, मेरे को एक ऐसा इंसान तो मिल गया जिससे मैं कैसी भी तरीके से बात कर सकता हूँ। ओके,
सो मोहल आप बोल रहे हो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जैसे आपको एक्सेप्ट करें। ओके नैना आप क्या बोलते हो? I want to say, as I covered mostly, we have zero tolerance and we have all policies. We have for POSH, in case if you face such discrimination, you can reach out to POSH committee. And if you're our even individuals, like our head or any head of the department or as I told you, like MD and all, you can go and approach and you can inform, like ऐसा नहीं है कि you have to go and take appointment. If you feel like and going talking and reach out to your head or anybody who we are comfortable and who when you joined, we have generally for 6 months and I'm not exactly how many months. Buddies allied, for me one buddy was aligned because of my English speaking and corporate means MBAs and then English. I was not able to grasp many English words. That local Kannadiga was a for me Kannada speaking guy, so that he can explain, I can understand. That way. Buddy was aligned for me, and he's aligned for everybody. But for me, he was a local person. Communication was better, and if I'm not able to understand, I can ask him. He can explain in Kannada that way. And again, Pride Month, we do a lot of. We have group called Mitra Group, LGBTQI Allies Group, and we do a lot of sensitizations and talks, film screening, workshops, and a lot of our colleagues. I remember when I joined 2 years, nobody has joined me in Pride March, Bangalore Pride. I never sent out a mail that saying that please join me for a Pride. 2 years, nobody has joined. I never thought that people will join. They joined in along with my colleagues and all, nearly 30 members. Whole corporate look back to us, that our inclusion and diversity at ThoughtWorks. So still I remember, yeah. So I think what I'm picking up from you, Nena, is that be approachable and accessible for any support that is taken. Given ThoughtWorks has given me an opportunity share about trans, especially once I joined, they used to ask a lot of questions, not supposed to ask about trans community. Whether you're, this is a very important, especially, 10 questions not to ask about trans community, whether you're castrated or not, that these, so many things, the points I really forgot. I sensitized so many times, and sending articles, very interesting article about trans, even short movies that way also. Okay. So then I'm going to stop you here because we are really short of time. And I'll just give Urmi also one chance to say, Urmi, हम क्या कर सकते हैं कि हम आपको हमेशा ये feeling दे कि I mean this is that we should, how do we behave inclusively basically? ये बाकी दो लोगों ने स्पीकर ने तो बोला ही है, बट मेरा ये मानना है कि एक्सेप्टेंस ये एक प्रोसेस है, ये इतना जल्दी मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है ना। सो ये प्रोसेस है और ये चलता रहेगा, और ये लाइफ लॉन्ग होने वाली चीज है। बट अगर मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और मैं आपके पास काम कर रही हूँ, तो आपका भी उतना ही मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपका भी उतना ही मुझ पे विश्वास होना चाहिए। वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप मैं आपके पास जॉब पे आई हूँ, अगर आप मुझे भरोसा रखोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ, अनुपमा मैम ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, उनको लगता है कि मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ, तो शायद से उन्होंने मुझ में कुछ अच्छा देखा है, या उनको लगता है कि मैं उनके यहाँ पे काम करने के लायक हूँ, तो मुझे भी काम करने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो शायद से मैं, हो सकता है आपसे 2-4 चीजें और सीखूं, है ना। और कई बार होता है कि ट्रस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ कई बार हम हमारी पर्सनल चीजें शेयर कर देते हैं, बट बहुत बार होता है कि कम्युनिटीज की कई बातें कहीं की कहीं चली जाती है।
है ना। मैं नॉट ओनली कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल सभी की बात कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज भी होना जरूरी है। और या ऑब्वियसली इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होनी जरूरी है, बट थोड़ा सा चीजों को, बाकी चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी हार्मोन्स पे है या ट्रीटमेंट पे है, उनका खर्चा बहुत है ना। आप अगर मुझे 15,000 की नौकरी दोगे और मेरा महीने का खर्चा ही 25,000 30,000 होता है, तो फिर मैं कहाँ से करूंगी मैनेज इन सब चीजों को, है ना। क्योंकि हार्मोन्स के लिए भी तो लेना है, तो उसको भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो हार्मोन्स तो कैसे फ्री में नहीं आएगा, है ना। सो वो भी चीजें थोड़ी देखनी इंपॉर्टेंट है जब हम पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे या पॉलिसी बनाने के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स उर्मी। सो आई थिंक ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सो हम लोग डिस्क्रिमिनेट ना करें अपने अप्रोच में। एक्सेप्टेंस की बात करी है एंड अप्रोचेबिलिटी की बात करी है। दीज आर सिंपल बिहेवियर्स विच वी कैन ब्रिंग इनटू आवर रेगुलर इंटरैक्ट। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी के साथ भी इंटरैक्ट करें, ऐसा बिहेवियर्स इंपॉर्टेंट है। एंड कम्युनिटी, बिकॉज कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस कर चुकी है, तो हमको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके ये एफर्ट डालना चाहिए। एक क्वेश्चन किसी ने, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि क्रिएटिव राइटिंग या मतलब फिल्म्स के लिए लिखो या मीडिया के लिए लिखो, इसके लिए तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या अपनी लाइक स्टोरी लिखो। तो ये वाली ऑक्यूपेशन कभी सोची नहीं किसी ने? क्यों नहीं किसी ने सोचा कि लिख सकते हैं? नहीं, हम सफर में लिखो करके आई प्रोजेक्ट थिंक होता नैना है। ने मुझे बताया कि हेलो, वो लिखना चाह रही है। हाँ, यस यस, या बोलिए। हम सफर ट्रस्ट में लिखो करके एक प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे से वो लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप लोग, आपको स्टोरीज लिखनी चाहिए, या कैसे आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहिए। तो उस तरीके से चीजें होती है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि नैना एंड मोहुल जानते होंगे लिखो के बारे में। ओके। Uh, बट सी, स्किल्स तो है ना, बट स्किल्स के साथ उतना थोड़ा सा उनको फिनिशिंग होने की भी जरूरत है ना। उतना उनको उस तरीके से प्रेजेंट होने की भी जरूरत है। मुझे स्टोरी लिखनी आती है, पर मुझे वो स्टोरी लिखना और स्टोरी लिखना में थोड़ा सा ग्रे लाइन है ना, बीच में एक थिन लाइन है। सो वो होना जरूरी है। मैं मेरी स्टोरी बोलूं और मैं मेरी स्टोरी लिखूं, इसमें बहुत डिफरेंट है। श्योर। सो जरूर, आई एम श्योर ये जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें कोई तो होंगे जो इंटरेस्टेड हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी स्टोरी, बिकॉज यस, आप जो सही बोल रहे हो, स्टोरी है, स्टोरी लिखना भी है, बट उसको ऐसे लिखना जिसमें किसी और को इंटरेस्ट है पढ़ने में, या वो कनेक्ट बनाए, वो भी एक आर्ट होता है। सो आई एम श्योर हमारे ग्रुप में ये जो भी सुन रहे हैं, कोई ना कोई वॉलंटियर जरूर आएंगे जो हेल्प कर सकते हैं ये स्टोरीज पहुंचाने के लिए। आगे आई थिंक कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे जो मेरे ख्याल से आंसर हो गए। लाइक किसी ने पूछा कि वर्क प्लेसेस में क्या पॉलिसीज होती है। आप सबने काफी सारी वर्क प्लेस रिलेटेड एग्जांपल्स, अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जो आई एम श्योर जो कॉर्पोरेट से हैं इस वेबिनार में, वो लोग काफी कुछ सीख के गए हैं इसमें। आई थिंक बुलिंग के बारे में पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ बुलिंग डू एक्सपीरियंस। आई थिंक वो भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं, मोहुल ने अपने लाइफ के इसमें एग्जांपल्स दिए हैं कि क्या व्हाट काइंड ऑफ बुलिंग हुआ है। how have they been able to become comfortable in the corporate world? I think Deepti you asked, and ये बात भी I think सब तीनों के एग्जांपल से you would have got the response to that. What kind of jobs can corporates help in giving them training? कैसे jobs क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये क्वेश्चन भी है। as I told you, as we know interning with Pride, because that way a lot of companies, like WAPSI, we do, that is also a very big program about bringing women back into, we have a lot of program like that, interning with Pride, as I told you, and WAPSI, and we have called STEP program. If you want to know about ThoughtWorks, multiple programs we do. You can reach out to our, I'll, before ending, I'll share you our ThoughtWorks website. Yeah, that will be Bringing really great. women back. Yeah, That that kind will of be lot great. of initiatives ThoughtWorks does. So there is one more question which has come.
after transitioning into one gender, whether you're transitioning from male to female or female to male, why is there necessity to have special rights or identity as a trans man or trans woman? Please explain, as it remains keeps you in exclusion. I didn't understand this question too well. I think it's all a matter of, Same here. I didn't understand this yeah. question. So from whatever I can explain, I think what I can see is that like what Mohal was saying, just accept us as we are. It does not matter whether we have transitioned, we have done anything. I am as I am in front of you, and just accept me. It should not matter to anybody, Exactly. right? Yeah, If well, ये होता है लाइक yes, go जैसे ahead. होता है ना कि मैम लाइक आप जैसे हो, अगर मेरा एक फ्रेंड है, चाहे वो कैसा भी है, जब मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तू ऐसा क्यों है, चाहे वेदर वो इंटेलिजेंट हो या कैसा भी हो, जब हम आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते कि आप ऐसे क्यों हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई राइट बनता है हम पे ये क्वेश्चन करने का कि हम ऐसे क्यों। Exactly, absolutely well said. I think एक question है जो medical है, and I will not take the medical question because I don't think हमारे participants medical इसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हैं. We will have one session where we'll have mental health professionals and some doctors. So उसमें हम ज़रूर ये question आपका जो transition, long term implications, this part we will handle in that. हमारे आज के जो participants है काफी young है. आई थिंक लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने के लिए अभी काफी लाइफ है उनकी आगे. टू क्लोज द सेशन बिकॉज वी हैव ओनली 4 minutes. फर्स्टली Urmi, Naina, Mohal, thank you very much. You have shared your journey, your insights, your experiences very beautifully. I'm sure जो भी पार्टिसिपेट किया है इस वेबिनार में सबने बहुत सीखा है. जो कॉर्पोरेट से हैं आई एम श्योर वो भी काफी सीखे गए हैं कि क्या कर सकते हैं. आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी पॉलिसीज और ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं जिनसे वो अपनी कंपनीज में भी ऐसा वातावरण ला सकते हैं. few things which recap के लिए मुझको जो मैंने what I have understood is that as far as policies are concerned, I think some of the same-sex benefits, the medical benefits, transition costs, insurance, these are gender-neutral washrooms. I think sensitizing the vendors, not just employees. Induction programs से लेके sensitization शुरू करना. Every senior leadership से then going downwards, sensitizing everybody about the community, the challenges, how each one of us can be inclusive. I think the fact that both the community as well as the job provider both need to, like tali ek haath se machli, both need to make the effort jointly. It is not as if like corporate ने job तैयार की और अगर the trans community is not ready to move forward, it is not going to work. So both need to make that effort. And I think also आप जैसे लोग जितना अपना story share करते हैं उतना ही आप inspire करोगे अपने community के लोगों के लिए as well as for the organizations and all of us. Because if you see the comments, अगर आप chat box में पढ़ रहे हो, so many people are saying we are inspired, we have understood so much about the community, and I know friends who have told me this. And I think these conversations are important if we have to create a society which is accepting and which is for everybody. I think skill development के बारे में आपने ये बोला था कि it should depend on strength, interest, right? I think, and also I think one of the beautiful things that I also picked up was zero tolerance for discrimination. And I think that each one of us, we don't need to be in a corporate, each one of us as an individual can put this as our life mantra that we will have zero tolerance for discrimination. And agar humne notice kiya, so we can call out that discrimination and put a stop to it. Our one voice can have a ripple effect across different platforms. So with that, I would like to close today's session. Big thanks to all the participants for being here. And as I said, Naina, Abhina, before we end, anything that you would like to add? And Naina, I know that you've come bright. I think you're ending the session very brightly with your face very clearly. Yeah, finally, when it started, Yeah. it was raining. Now, finally, Yeah. power is back. Great. You know, Bangalore rain. Abhina, And
Yeah. Sorry, I think we have only a minute today. Yeah. We're really like cutting. Okay, thank you so much. Abhinay, anything you want to add? So, No, I think these guys were brilliant. I think Yeah. all of them, जितने लोगों ने बात किया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बात किया. नैना, आप, मोहुल और उर्मी, आप तीनों जन, all three of you are heroes of our community, and keep that light shining hard, because हम लोग को बहुत आगे जाना है. Millions of community members है जिनको एक dignity के साथ जिंदगी जीना जरूरी है, और वो dignity एक तरीके से जॉब से भी आएगी जब वो अपना जिंदगी खुद जिएंगे. थैंक यू सो मच फॉर enlightening us. Thank you so much. Thank you. Abhinav, thank you so much for your constant support. You're the backbone of these webinars. Eternally thankful for this partnership and for this work that we are doing together. Thanks, everyone. Have a wonderful weekend. Weekend. Thank Thank you so much, all of you. Thank you so much. Bye, everyone. Yeah. Bye-bye. Take care. Stay safe.